ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਠਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਹੱਦ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝੜਪ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਗਰੋ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਉੱਥੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਟਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਆਲੂਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਪਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਰਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿਨ ਘੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਤਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਆ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਏ ਆ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਪਰ ਤੈਨਾਤ 4 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸਨ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਭੜਕ ਗਏ। बैरिकेडिंग तोड़ी गई है, कार्रवाई दोनों पासे हुई है। सर हिंदी में बोलना। हिंदी में। आपको जैसा मालूम है कि 7/1/2023 से कौमी इंसाफ मोर्चा ने पंजाब चंडीगढ़ बॉर्डर पे, मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर पे अपना पक्का मोर्चा लगा रखा है जी। मटौर बैरियर पे इनका पूरा पक्का मोर्चा लगा हुआ है। यहाँ करीब 250 से 300 आदमी रोज़ बैठते हैं और इनकी सपोर्ट में कई ऑर्गेनाइजेशंस रोज़ आती हैं जो अलग अलग संख्याओं में आती हैं। 3 दिन पहले इन्होंने एक घोषणा की कि ये सीएम रेजिडेंस जाना चाहते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, और अगर इनको रोका गया
तो ये अपनी गिरफ्तारी देंगे, डिटेंशन देंगे। और इनके प्रोग्राम के मुताबिक इनको हम लोगों ने ये बता दिया कि चंडीगढ़ में 144 धारा लगी हुई है, 5 से ज़्यादा आदमी अलाउड नहीं है। सीएम रेजिडेंस जो है हाई सिक्योरिटी जोन में आता है, इसलिए हम वहाँ पे किसी तरह के प्रोटेस्ट को हम अलाउ नहीं कर सकते और हमारी तरफ से किसी भी प्रोटेस्ट की इजाज़त चंडीगढ़ में नहीं है जी। इसके बावजूद आज जैसा आप सबको मालूम है करीब 12-1 बजे के आसपास इनके 1000 आदमी हमारे बैरिकेड पे आए, यहाँ 51-52 जो रोड सेक्टर है उसके बॉर्डर पे, और यहाँ पे इन्होंने हमारे बैरिकेड पे हमारे जो पुलिस वाले तैनात थे उनके साथ थोड़ी देर तो इन्होंने बातचीत की, लेकिन उसके बाद अचानक ये एकदम उग्र हो गए और इन्होंने हमारे बैरिकेड को तोड़ के जंप करके इधर आने की कोशिश की। पुलिस की तरफ से इनको समझाया गया, इनको चेतावनी भी दी गई और इनको फिर से दोहराया गया, बताया गया कि इस तरह की नहीं है। लेकिन आज जो क्राउड था इनके साथ, उनमें कईयों के पास हथियार थे, डंडे थे, तलवारें थीं और भी डेंजरस वेपन ये साथ में कैरी कर रहे थे। तो जब पुलिस वालों ने रोका तो अचानक से इन्होंने हमारे पुलिस वाले जो इस बैरिकेड पे तैनात थे उन पे उन्होंने अटैक किया, जिसमें कि कई पुलिस वालों को चोटें आईं। उसके बाद इन्होंने बैरिकेड को तोड़ा है, हमने हल्का पानी चलाया, आप सबने देखा, पानी के द्वारा हमने कोशिश की इनको रोकने की, लेकिन पीछे से एक और जत्था आया। जब हम बातचीत कर रहे थे, उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, उस जत्थे में घोड़े भी थे, कुछ हमने निहंगों के दल भी देखे उसमें जिनके पास भी हथियारें थीं, और उन्होंने सीधा आकर के उन तलवारों से हमारे पुलिस वालों को अटैक किया। कुछ पुलिस वाले गिर गए ज़मीन पे, उनको बहुत गंभीर चोटें आई हैं, उनको अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। साथ हमारे आरएएफ के जवान घायल हैं और कई पुलिस वाले भी घायल हैं। मुझे लगता है 25-30 जवान, उनको काफ़ी सीरियस चोटें आई हैं, सिर पे भी चोटें आई हैं और गंभीर हथियारों से, मतलब डेंजरस वेपन से इनके ऊपर अटैक हुआ है। और हमारे जो जितने पुलिस अफसरान यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इनके लीडरों को समझा करके इनको किसी तरीके से नियंत्रण में किया जाए, लेकिन इन्होंने हमारी बात सुनी नहीं। आगे आकर के हमारी गाड़ियाँ तोड़ दी, जैसा आप देख रहे हैं हमारी पीछे वज्रा वैन लगी हुई है उसको तोड़ दिया इन्होंने, हमारे वाटर कैनन को तोड़ा, हमारी एक फायर टेंडर को ये लेकर के चले गए। जितने बैरिकेड थे हमारे यहाँ पे उन सबको खींच करके ले गए और ये तलवारें लेकर के अंदर घुस गए। फिर हमारी जो पीछे जो टीम लगी थी उन्होंने किसी तरीके से उनको फिर समझा बुझा करके पुश किया है। तो ये करीब करीब 2-2.5 घंटे पुलिस के साथ जूझते रहे हैं और इन्होंने अच्छी खासी हिंसा की और पथराव किया। जो पहले इनको जब ये पत्थर चले तो ये पत्थर कहीं भीड़ के बीच से ही आए थे और उसका हमारे पास सबूत भी है, लेकिन इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया पुलिस वालों पे कि पुलिस वालों ने पत्थर चलाए, जबकि आप देख रहे हैं आपके सामने हैं, गाड़ियाँ भी हैं और जिन पे अटैक हुआ तलवारों से, जो गाड़ियों के अंदर बैठे थे, वो भी आपको ये बताएंगे कि किस तरह से इन्होंने बुरी तरह से पुलिस वालों को अटैक किया है और जिन्होंने अपनी तरफ से कोई ऐसा प्रोवोकेशन नहीं रहा। पुलिस ने अपने बहुत ही संयमता के साथ और काफ़ी रिस्ट्रेन बरतने के बाद इनको काबू किया है। हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि इनको मिनिमम फोर्स यूज़ करके काबू किया जाए। जो आप लोगों के सामने देखा, आप सभी ने देखा, प्रेस के पास इसके काफ़ी फुटेजेस हैं और मुझे यकीन है कि ये सारे फुटेजेस हम अपने एविडेंस में भी यूज़ करेंगे। कोई अरेस्ट तो हम इनके खिलाफ, रजिस्टर कर रहे हैं? जी हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये वारदात आज हुई है उसके ऊपर हम अपनी कानूनी कार्रवाई करेंगे और फिर हम उसके हिसाब से आगे चलेंगे। पर आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? क्या है, क्योंकि मोर्चा लगातार ये कह रहे हैं कि शायद फिर से चंडीगढ़ को कूच करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, मोर्चा पिछले कई दिनों से ये प्रयास कर रहा है। मैं पंजाब पुलिस से भी लगातार संपर्क में हूँ। आज भी पंजाब पुलिस को हम बराबर इस बात की इतला दे रहे थे कि ये इस तरह की हरकत कर सकते हैं, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली जब ये यहाँ पहुँचे हैं तो ऐसा लगा नहीं कि इनको रास्ते में किसी ने रोका और ये यहाँ तक अपने आप बगैर रुके चले पहुँच आए। और उस वक्त हमारी पुलिस फोर्स जो थी वही सामने थी और हमने अपनी पूरी कोशिश की है। तो मैंने पंजाब पुलिस के डीजीपी साहब से भी रिक्वेस्ट की है, पंजाब सरकार से भी रिक्वेस्ट की है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए, चूँकि इनकी ज़्यादातर मांगें आज पंजाब के साथ थी और आज एक मीटिंग भी हो रही थी, पंजाब के एक मंत्री के अंदर में इनकी एक मीटिंग भी हो रही थी, उस मीटिंग के दौरान ये हिंसा हुई है। तो ये जो क्राउड है ये बिल्कुल ही लीडरलेस टाइप का क्राउड था आज आया था, किसी के कंट्रोल में नहीं था और इसमें काफ़ी हुड़दंगबाज लोग भी थे जो
बेसिकली हुड़दंग करके थोड़ा उत्पात करके मचाना चाहते थे और आसपास के जितने भी रेजिडेंट्स हैं उन्होंने भी देखा है, कई दिनों से वो भी परेशान हैं। कई लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि उनको किसी न किसी तरह की परेशानी होती है, आने जाने में परेशानी होती है, लेकिन ये किसी तरह की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो अब मैं अपील करूंगा इस कौमी इंसाफ मोर्चे के जितने भी लीडर्स हैं कि एक तो ये अपने इसको शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से वातावरण से अगर आगे बढ़ें तो इसी में सबकी भलाई है। दूसरा ये कि अपने लोगों को कंट्रोल भी करना सीखें, क्योंकि जिस तरह का प्रॉमिस उन्होंने पुलिस के साथ किया था वैसा बर्ताव आज उन्होंने किया नहीं। सर क्या कोऑर्डिनेशन पंजाब पुलिस के साथ रह रही है, क्योंकि आज आप कह रहे हैं कि आपके साथ रेगुलर बातचीत हो रही है? पंजाब पुलिस से मैं लगातार संपर्क में हूँ। पंजाब पुलिस भी हमें एश्योर कर रही है कि वो अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज जो हुआ वो उसने सबको सरप्राइज से लिया, हमें भी सरप्राइज से लिया। और आप देख रहे हैं कि ये पंजाब के इलाके में ही हुआ है, जो हमने अपने बॉर्डर पे इनको रोकने की कोशिश की थी। तो ये यहाँ तक कैसे पहुँचे और इतने हथियारों के साथ कैसे आए, ये एक सोचने का विषय है। इसके ऊपर उनको भी विचार करना चाहिए। तो सर इसका फिर हम जिम्मेवार किसको माने, क्योंकि कहीं ना कहीं तो अगर आप नहीं, पंजाब अभी मैं कोई जिम्मेवारी की बात नहीं करूंगा। अभी मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जो हुआ उसके लिए कौमी इंसाफ मोर्चा ही पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने इस तरह का एश्योरेंस पंजाब को भी दिया था, हमें भी दिया था। ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਵਾਈਪਨ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? सब तरह के वेपन्स हैं इसमें, बड़ी बड़ी तलवारें हैं, घोड़े लेकर के आए हैं, लाठी उनके हाथ में थी और सब तरह के डेंजरस वेपन थे, लोहे के रॉड थे इनके पास, जिससे इन्होंने अटैक किया है। FIR भी होगी इसमें और उन सबके खिलाफ होगी जो आज इसमें शामिल थे। बाकी हमारे पास काफी वीडियो फुटेजेस हैं और बहुत सारे एविडेंस हैं, आप देख रहे हैं, गाड़ियां तोड़ी गई हैं।